Hello students, myself K. Sipra. Welcome to my YouTube channel Physics by K. Sipra ma'am. If you like my video, if you understand the concept from me, then please like and subscribe my K. Sipra ma'am. The topic for today is superposition of forces. That is known as principle of superposition. In earlier videos, I have already discussed the Coulomb's law, detailed analysis of Coulomb's law, dielectric force constant, and Coulomb's law in vector form. Now it is matter to discuss how the force will act between different charges if a single charge will be acted upon by number of charges. So topic for today is principle of superposition. What is the topic for today? Principle of superposition. That is forces between the multiple charges. What will be the force, resultant force acting between the multiple charges? What the meaning of this? Now let us suppose that you have one charge Q naught. You have one charge Q naught and there are number of charges in the neighborhood of this charge, test charge Q naught. So I will draw different charges. Let it be Q1, let it be Q2, let it be Q3, let it be Qn. Getting my points? So there are number of charges in the neighborhood of Q naught. So the electrostatic force will act. The electrostatic force will act between all these charges. Electrostatic force करने का मतलब है कि जिस Coulomb's force की हम बात करते हैं वो हर दो चार्ज के पेयर के बीच में एक्ट करेगा. कहने का मतलब है कि एक पेयर आपका बन गया, जस्ट अ मिनट, एक पेयर आपका बन गया Q naught Q1, दूसरा पेयर बन गया आपका Q naught Q2, तीसरा पेयर बन रहा है आपका Q naught Q3. Likewise, we have several, and this is the n number of charges. So Qn, बीच में आप लोग और चाहे तो और बना सकते हैं. Let us, I am drawing here another charge Q4. Here it is another charge Q5. All right. Okay. So this means what? That on the charge Q naught. On the charge Q naught, we have a number of charges. We have a number of charges acting their force. So what will be the resultant amount of force acting on the charge Q naught? करने का मतलब क्या है कि आज की क्लास का टारगेट क्या है, आज की क्लास का हमारा एम क्या है कि अगर हमारी सिचुएशन इस तरह से हो, अगर हमारी सिचुएशन इस तरह से हो कि Q naught चार्ज के ऊपर, Q naught चार्ज के नेबरहुड पे ढेर सारी चार्जेस रखी हुई हैं, तो Q naught चार्ज के ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि F naught is equal to what? F naught वेक्टर is equal to what? यही हमारा आज का टारगेट है. अब देखिए बच्चे, मैंने बताया था तुम लोगों को कि when we are talking about Coulomb's interaction, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर लेक्चर देख लो, फिर से पुराना वाला वीडियो शेयर किया हुआ है कि Coulomb's force is not affected by the presence of other charges. Coulomb's force is not affected by the presence of other charges in the neighborhood. कहने का मतलब कि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो Coulomb's force of attraction या रिपल्सन लगता है, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो Coulomb's force of attraction या रिपल्सन लगता है, उस फोर्स पर किसी तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको एक पोजीशन वेक्टर में डालेंगे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आई विल ड्रॉ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम and this one is my x, this one is my y, and this one is my z. Do you have any confusion? It is okay? Okay students. So this is my origin and what I will do, I will write the position vector of different charges. What I will do, I will do the position vector of different charges from the origin O. Origin O से हम हर चार्ज के पोजीशन वेक्टर को लेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से लाइन को ज्वाइन करेंगे. We will join the line from origin to the charges. तो यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया आपको किस लाइन को, तो Q naught वाले को. तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कहला गया बच्चों, ये हो गया हमारा R naught. और जब हमने इसको ज्वाइन किया किससे, तो Q1 वाले से, तो ये हमारा बन गया R1.
आर यू गेटिंग? दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सिमिलरली मैंने इसको ड्रॉ कर दिया किससे, Q4 से, तो ये क्या हो गया मेरा R4। इसको 2 से कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा R2। ये थर्ड वन बचा हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये क्या बन गया मेरा R3। आई बात समझ में आप लोगों को? कहने का मतलब कि R1 पोजीशन वेक्टर किसका है, तो चार्ज Q1 का, ठीक है। R2 पोजीशन वेक्टर किसका है, तो चार्ज Q2 का। R3 किसका है, तो चार्ज Q3 का। सिमिलरली आगे और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Rn किसका होगा, तो इट विल बी ऑफ द चार्ज Qn। I'm not limiting the numbers. In numerical problems, you have the limited numbers. Suppose 10 numbers, 5 numbers, 6 numbers. Like this, you have the numbers. So Rn vector will be equal to Qn. यहाँ तक ओके है। अब हमें करना क्या है, तो हमें निकालना है कूलम्स फोर्स। हमें क्या निकालना है, कूलम्स फोर्स। देखो प्रोसीड कैसे करना है, तो प्रोसीड करने का तरीका, कूलम्स फोर्स जो है, फोर्स हमारा क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है। तो जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एक साथ ढेर सारा फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेगा। अब कहोगे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, तो फोर्स देखो कौन कौन सा एक्ट हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट वन, क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका F01। आई बात समझ में, ये है मेरा F01। F01 का मतलब क्या हुआ, बताया था ना कि F01 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, force acting on Q0 charge due to Q1. Are you getting my word? What is F01? F01 is force acting on Q0 charge due to Q1. Likewise, in vector form I have written F12 force acting on Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। आई बात समझ में? तो वहीं से हमने क्या किया, F01। अब देखो Q0 जो है, Q0 अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन है तो यू कैन से दैट दिस चार्ज इज अ टेस्ट चार्ज। Q0 को आप क्या कह सकते हैं, तो उसको आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि Q0 के ऊपर ओवरऑल फोर्स को जज कर रहे हैं। यही मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर किसी चार्ज के चारों तरफ ढेर सारा चार्जेस रखा हुआ है, ये Q0 मेरा सेंटर में है, कहीं भी लोकेशन हो, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, there are several number of charges. If they are present in the neighboring region of some charge, and what will be the total force? What will be the total force acting on that charge? उस फोर्स, उस सेंटर चार्ज पे, जिसपे कि हमको ऑब्जर्व करना है, जिसको हम टेस्ट चार्ज कर, कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो टोटल फोर्स कितना होगा, वही हम लोगों को निकालना है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि उस पे एक्ट करने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला टोटल फोर्स इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। आई बात समझ में? इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि F01 क्या है, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। आई बात समझ में? सिमिलरली F02 क्या है बच्चा, ये हो गया तुम्हारा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, इसको ये लिखते हैं, चलो, ड्यू टू Q1। सिमिलरली मैं लिखूंगी F0n। तो ये F0n क्या हो जाएगा, F0n हो जाएगा फोर्स ऑन Qn चार्ज, Qn ड्यू टू फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Qn। अब n का नंबर जब 1 होगा तो Q1 हो जाएगा, जब 2 होगा तो Q2 होगा, जब Q3 होगा तो Q3 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा कि टोटल फोर्स एक्टिंग F वेक्टर इज इक्वल टू, टोटल फोर्स किस पे निकालना है, तो Q0 चार्ज पे निकालना है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, F0। किस पे निकालना है, देखो याद क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन में रहे कि हम लोगों को Q1 पे निकालना है, तो मेरा फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट F1। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने सेंटर में किसको लिया है, हम किसको अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम Q0 की बात कर रहे हैं। We are talking about the what will be the effect on Q0.
What will be the force on Q naught due to the presence of these charges? कौन कौन सा चार्ज है? तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, so on. So F1 is F0 is equal to F01 plus F02 plus लास्ट में क्या लिख देते हैं? एक यूजुअल मेथड है ना, क्या मेथड है? हम लोग लिखते हैं F0n, n नंबर ऑफ एटम्स है तो इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो फॉर्म है, यही प्रिंसिपल है। चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, कि हर जगह बुक में अवेलेबल है तुम्हारा स्टेटमेंट, क्या कहता है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, the total force acting on a charge due to the presence of several charges in its neighborhood। ध्यान से देना, गौर से सुनो इस पॉइंट को कि the total force acting on the charge due to the presence of several charges in its neighborhood is the vector sum of individual Coulomb's forces। देखो यहाँ मैंने लिखा है, अब इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे? तो आई विल पुट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ F01, F02 टिल F0n, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक कंपाइल करके हमें एक जनरल फॉर्म देना होगा, और वही फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू जो भी हो रेंज में ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1 to infinity n वैल्यू तक कर देंगे, और उसके बाद हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट आगे बढ़ने के लिए आपको याद यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपको यहाँ याद होना चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फॉर्मूला, कूलम्स लॉ का एक वीडियो है, लास्ट वीडियो, आई थिंक वीडियो नंबर 4, यू गो थ्रू इट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। कूलम्स लॉ का जो वीडियो वेक्टर फॉर्म है उसके आधार पर अभी हम क्या करेंगे कि इन तीनों चारों फोर्सेस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सबको एड अप करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो क्या है कि F01, व्हाट इज माय F01, तो क्या होगा 1/4πε0, दो चार्जेस हैं क्या क्या, Q0 Q1 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बताओ बच्चा? ओके, क्यूब वाला फॉर्मूला लेते हैं, इट इज क्यूब, और दिस वन बिकम्स R0 वेक्टर। इज दैट ओके? ओके, लेट्स सी। So for nth number of charge F0n, for nth number of charge it will be written as 1/4πε0 Q0 Qn divided by R20 वेक्टर, Q आ गया आपका, यहाँ हो गया Rn0 0। Is that okay everyone? Okay then, I'm going to rub it. Hope you have drawn the diagram on your copy. So what will be the next target? What principle of superposition says? Principle of superposition says that total force acting on the charge Q0 H F0 is equal to अब देखो यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 1/4πε0 हर टर्म में है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा भी कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? यस, दिख रहा है। व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज योर Q0 इज एवरीवेयर। तो हम यहाँ पे अब कॉमन क्या लेंगे? Q0 बाय 1/4π। चलो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सो आई एम राइटिंग F0 इज इक्वल टू, टोटल फोर्स इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन प्लस F0n। स्मॉल n लिया है तो हर जगह स्मॉल n ही लेंगे, कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल नहीं लेंगे। हालांकि आप चाहें तो स्मॉल और कैपिटल में चॉइस आपकी है, जो चाहे आप ले सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें इन सारे इक्वेशंस को फोकस करना। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर n, बिकॉज इन बिटवीन यू हैव एनी नंबर ऑफ इक्वेशंस। So now I'm going to take the common. What can we take common? हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम कॉमन लेंगे 1/4πε0। देख लो हर टर्म्स में है, हर फोर्स के एक्सप्रेशन में है। एंड नेक्स्ट वी विल टेक द charge. Which charge? Q0. Q0 is common everywhere it is. So Q0 by
4 pi epsilon naught. All right, Q naught by 4 pi epsilon naught is common. Q naught by 4 pi epsilon naught is common. Now remaining terms are Q1 by क्या है भाई, तो ये हो गया R naught 10 क्यूब. देखिए वेक्टर फॉर्म के आधार पे हम बढ़ते जा रहे हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया आपका Q2 अपॉन R2 नॉट वेक्टर. यहाँ अगर मिस्टेक होगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा. यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी है. सावधानी कुछ नहीं है, बस हमें वेक्टर फॉर्म याद होना चाहिए. वेक्टर फॉर्म का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो याद होना चाहिए. मैंने लिखा था जनरल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं यहाँ उसी को लेकर प्रोसीड कर रही हूँ. तुम चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर वाला इक्वेशन भी ले सकते हो जिसमें कि यूनिट कैप लेकर हमने आगे बढ़ा था. तो आपकी मर्जी है, आप अपने चॉइस से ले सकते हैं, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे ला करके छोड़ूंगी. मतलब कहने का ये कि मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लाऊंगी. तो जनरल एक्सप्रेशन में अब मैं लास्ट टर्म लिखूंगी. लास्ट टर्म में क्या लिखूंगी? आई विल राइट Qn अपॉन Rn नॉट 0 and this will become Rn not 0 vector. Okay, now this bracket will be closed. अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं हम लोग. इनको कुछ मैथ्स लगाते हैं. यहाँ पे मैथ्स क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर फिजिक्स लगा दिया हमने कि ये प्रिंसिपल कह रहा है. Now maths what will we take? We will sum up all these terms in a general form and that is, इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसको समेशन करेंगे. क्या कर देंगे? इसको समेशन के फॉर्म में करेंगे. तो समेशन करने के लिए what we can do? We will put a summation sign. So see what we can do? Q naught upon 4 pi epsilon naught, Q naught upon 4 pi epsilon naught summation over. समेशन किया तो समेशन क्या है कि समेशन विल बी Q बाय, मैं यहाँ कर रही हूँ R I ले रही हूँ. What I am taking? RI0 क्यूब. ठीक है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ओके चलो, नहीं है कोई दिक्कत तो. और यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी होगी, दूसरे इंक से लिखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा सब. चलो इसको मिटा दें, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं. ओके, it should be very clear because it is a final expression. तो इसमें आप लोगों को सही से देखना चाहिए. मैं यहाँ लिख रही हूँ. तो इसके बाद आ गया मेरा यहाँ पे. चलो, so it is F naught vector is equal to Q naught by 4 pi epsilon naught समेशन लिया. ठीक है, सबको ऐड करना है. तो एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, Q1 है, Q2 है, टिल Qn है. तो यानी कि समेशन जो है हमको क्या करना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो इसको हम ले लेते हैं I is equal to, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? It starts from 1. I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. And what I will write? Here Qi. आई बात समझ में? तो अब ये इसका अप्लाइड मीनिंग क्या हो गया? It will be Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn so on. Now divided by, इतना सही नहीं चलेगा. ये भी टर्म से नीचे भी गौर कीजिए. नीचे क्या है हमारा? तो पोजीशन वेक्टर का क्यूब है मॉड में. तो इट इज R1 0 क्यूब, R2 0 क्यूब, R2 0 क्यूब, Rn 0 क्यूब. आई बात समझ में? तो देखो नॉट कॉमन. फिर यहाँ क्या बढ़ रहा है? अगर हम यहाँ ले ले Ri0, क्या ले ले हम? Ri0. बस यही समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोगों को. बी वेरी केयरफुल. Ri0 कर दे अगर, तो I is equal to 1 तो it will be R10. If I is equal to 2 it will become R20. इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो this will becomes R vector R I0 का क्यूब. आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? तो अब देखो आगे क्या करते हैं. अब हमें है यहाँ पे हमारा वेक्टर. तो वेक्टर में भी वही बात है. देखिए यहाँ पे क्या है? R10, R20, Rn0. तो मैं यहाँ कर दूंगी जस्ट अ मिनट. आई विल राइट इट एज Ri0 वेक्टर. दैट्स ऑल, वेरी इजी. समझ आया? यही है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कहाँ पे याद रखना है? याद क्या रखना है? तो याद हमें रखना है वेक्टर फॉर्म को, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को. पहला फाउंडेशन इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए. दूसरा कि ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आई एम नॉट राइटिंग स्टेटमेंट ऑन ब्लैक बोर्ड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन योर बुक्स. एनसीईआरटी बुक्स में है, आप लिख लेना. मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. तो ये कहता क्या है कि अगर फोर्स जो किसी एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स लगाना है, अभी तक जो हमने कूलम्ब्स फोर्स का डिस्कशन किया था, जो भी डिस्कशन की बातें हुई थी, वी वे आर टॉकिंग अबाउट 2 चार्ज बॉडी. देखा आपने पहले के लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ के 1 2 3 4
सारे लेक्चर्स को देख लो, उसमें आप देखना कि वी आर टेकिंग टू चार्ज बॉडी A and B, Q1 and Q2. We are not talking about a third. If we impose third charge body in between two, what will happen? तो Coulomb's law की प्रॉपर्टी में क्या है कि it is not affected, Coulomb's force is not affected by the presence or absence of any other charges in its neighborhood. आप किसी को डाल दो या किसी को हटा दो, ठीक है, तो उसमें जो टोटल फोर्स होगा उस दो के बीच का फोर्स किसी तीसरे के द्वारा हैम्पर नहीं होता है। इस वही बात हो गई ना कि हमारी तुम्हारी दोस्ती जो है वो किसी तीसरे के आने से कोई अफेक्ट नहीं हो सकती है। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती है, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि कोई अगर तीसरा बंदा आ गया तो उसे हमारे बीच के इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कंबाइन किया है और तुम लोगों का जो कंफ्यूजन होगा, जो पॉइंट प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ फिर रिपीट करती हूँ कि यहाँ जो आपका कूलम्स का वेक्टर फॉर्म है इसको हमें डालना है समेशन पे। इसको हमें कहाँ डालना है? तो हमें डालना है समेशन पे और केयरफुली यहाँ पे करना है। Q नॉट चार्ज पे ही इफेक्ट जज करना है, इसलिए बाहर कॉमन में Q नॉट जाएगा, Q1 नहीं जाएगा, Q2 नहीं जाएगा, Q नॉट ही जाएगा और उसी का पोजीशन वेक्टर चेक करना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। बाद में हमने इसको समेशन कर दिया और ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, द इंपॉर्टेंट फाइनल एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। अगर बोल दो कोई किसी में कहते हैं 10 यूनिट चार्जेस है तो 10 चार्जेस हैं तो 1 to 10 हो जाएगी, अगर 5 है तो 1 to 5 हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये तो है वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर है, तो इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये डायरेक्शन निकलेगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक टू कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस, दो कंपोनेंट फोर्स को आप लेंगे। सपोज मान लो कि मैंने Q1 और Q2 चार्ज के कारण फोर्स ले लिया, तो कुछ इसका हो गया, मान लेते हैं कि एक गया इधर और एक गया इधर, ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया। तो अब इसका हमने एक डायरेक्शन निकाल लिया, तो अब ये दो का रिजल्टेंट ये आ गया मेरा, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट और एक तीसरा वेक्टर, ठीक, तो इस दोनों को मिला करके एक ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, यही कहलाता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चिंता मत करो, ज्यादा लंबे चार्जेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बहुत शॉर्ट में देगा ये, बहुत 100 चार्जेस 20 चार्जेस ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, 2 4 5 में ही निपट जाता है ये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द डायरेक्शन ऑफ, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, resultant force is given by polygon law of vector addition. Okay students, I hope you have understood the concept of superposition principle. If you like my video, please subscribe my channel Physics by K. Sipra ma'am. Thank you students, thank you for listening.